स्क्रीन देखिए, स्क्रीन शो हो रही है आपको? स्क्रीन शो हो रही है मैम आपको? ओके। अच्छा, आज हमारा क्या रहेगा कि वी आर डूइंग दैट इन दैट वे कि हाँ, हम बहुत सारे ऑफेंसेस करेंगे रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी. सो व्हाट वी डू, आई विल जस्ट गो विद द सेक्शंस. एक सेक्शन जो उसका मेन डेफिनेशन पार्ट और कोर सेक्शन होगा, उसके बाद जो उसके साथ जो अपार्ट फ्रॉम सेक्शंस होंगे, यू विल बी रीड हिमसेल्फ. इलस्ट्रेशन अच्छे से पढ़ेंगे हर सेक्शन की, और एक्सप्लेनेशन. कोलेक्ट्रल पार्ट ही है, अलग नहीं लगेगा आपको. इलस्ट्रेशन जरूर पढ़नी है बस सबकी, ठीक है? Okay then. So good morning everyone. Today we start our the next lecture series regarding the Bharatiya Nyaya Samhita, and it is the chapter 17 regarding the offence against property. So section 303 is the first offence of a theft regarding the offence against property in a line of offence against property. We have to be very clear about this chapter with the offences. What we need to be clarified and make a table is that कि कौन सा ऑफेंस किस प्रॉपर्टी से रिलेट करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी क्लियर विद दैट कि भाई इस ऑफेंस में मूवेबल प्रॉपर्टी की बात होती है और इस ऑफेंस में इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात होती है. सेकंड, यू हैव टू बी क्लियर विद द हाउ द एक्टसरिया वर्क. कितने पार्ट में किसी चीज को डिस्पजेस करना, किसी चीज को मूव करना, किसी चीज को समहाउ चेंज द पोजीशन करना. तो दैट द थिंक विच थिंग आर एक्चुअली रिक्वायर्ड टू कॉज द ऑफेंस हियर, दैट इज द एक्टसरिया पार्ट. So two things you have to be clear with that: the actus-rea and the concept of property, which type of property come under this under that offense, and last with the mens rea, how much the mens rea is required there. Clear? चलो इस लाइनअप से हम फर्स्ट सेक्शन पढ़ते हैं. सेक्शन 303 इज अबाउट द थेफ्ट. इट सेड whoever intending to take dishonestly, the first thing is come essential ingredient is that whenever I doing the offense of theft, I have the dishonest intention. Dishonest intention are defined in the section 2 definitions part, and simply says that whenever the one person get the wrongful gain एंड अनदर गेट द रॉन्गफुल लॉस. अगर मेरी इस तरीके की इंटेंशन है कि किसी को या फिर मुझको तो रॉन्गफुल गेन हो और दूसरे व्यक्ति को रॉन्गफुल लॉस डेफिनेटली हो. क्लियर दैट? So whoever intending to take dishonestly any movable property, second thing is essential ingredient is that it should be with the movable property. Whoever intended to take dishonestly any movable property out of the possession of any person. Third thing is the from the possession of another one, not from the ownership. It doesn't matter the another guy is a owner or not. उसके पास किसी चीज की पोजीशन है और आप उससे वो छीन लेते हैं, डिसऑनेस्टली आप उससे ले लेते हैं या चुरा लेते हैं, दैट इज द थेफ्ट. विदाउट दैट पर्सन कंसेंट, उस पर्सन की कंसेंट से नहीं ली. नाउ व्हाट आर डू, दैट इज द एक्टस रिया. Move that property in order such taking is said to commit theft. So it means for the actus rea part is there moving of property. What the here required? Actus rea is move of property. Mens rea is there the dishonest intention of that guy. Essential ingredient is that the movable property from the possession of another one without the consent. These 5 things are required to make the offense of theft. हम किसी की पोजीशन से कोई मूवेबल प्रॉपर्टी लेते हैं डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ, उसको मूव करते हैं. अगर मैंने मूव कर दिया, द थेफ्ट हैज बीन डन. क्लियर विद दैट? एक दो एग्जांपल लेंगे अब हम इसके रिगार्डिंग. फर्स्ट, सपोज यू हैव अ piece of paper with you and you have a no value with that. Suppose you have a notes of a subject, you already read it, now you don't require it. आपने वो अपने टेबल पे रखे हुए हैं, मैं आपके घर गया और वो नोट्स में लेके अपने घर आ जाता हूँ. इज इट अ थेफ्ट और नॉट? इट्स अ थेफ्ट और नॉट? इट्स नॉट अ थेफ्ट. वाई? बिकॉज आई डिडेंट मेक एनी रॉन्गफुल लॉस टू यू. आपके लिए उसकी कोई वैल्यू ही नहीं थी. It's just a piece of paper, you are not worry about it. For the first thing I said, dishonest intention, and dishonest intention is about wrongful gain और wrongful loss. अगर मैं आपके घर से कोई ऐसी चीज ले जाता हूं जिसकी आपकी नजर में कोई वर्थ ही नहीं ऐसी नहीं है, it means the not wrongful loss occurred to you.
वैल्यूएबल होता तो लॉस है, तो थेफ्ट था। क्लियर विद दैट? Second thing, again come with another example. If I said, if I give you a watch to you to fix it, some of the I have the wrist watch and that is not work properly, and you are the watch mechanic, and I give that to watch to you. One day I go to your shop and I find you are not available there, but I find my wrist watch. I just get that watch myself with myself and come to my home. Can I say that I am the actual owner and it's not a theft? Is it a theft or not? You say first. It's my watch, I just get from your shop. It's also with theft. Very good. Because I get that watch from your possession. Clear? नेक्स्ट, एक रिस्ट वॉच है, मैंने आपको दी, आप एक वॉच मैकेनिक हैं सही करने के लिए। मैं आपकी दुकान पे अगले दिन आता हूँ, अब मैं पाता हूँ कि आप नहीं है, लेकिन मेरी वॉच वहाँ पे रखी हुई है। अब मैं वॉच लेके चला जाता हूँ, तो क्या ये थेफ्ट हुई? हाँ, क्या हुई? हाँ, थेफ्ट हुई, बिकॉज आई टेक द वॉच फ्रॉम योर पोजीशन। देयर इज अ नो कंसेप्ट ऑफ द ओनरशिप हियर। क्लियर? सेकेंड थिंग इज अब, हाँ, क्या चीज, क्या कह रहे हो आप? वो अपनी शॉप तो ले, अपनी वॉच तो लेके आया है सर। तो थेफ्ट नहीं है ये? थेफ्ट है सर। हाँ, डेफिनेटली थेफ्ट है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो अपनी वॉच बेशक लेके आए, लेकिन तब भी ये थेफ्ट है। ओनरशिप का यहाँ पे कोई पर्पस नहीं है। वी जस्ट हियर डिस्कस अबाउट द पोजीशन। जब मैंने वो वॉच आपकी दुकान से ली तब वो आपके पास, आपके पोजीशन में थी, सो इट्स अ थेफ्ट। क्लियर? सेकेंड थिंग इज अबाउट द कंसेंट। द वर्ड कंसेंट, हाँ जी, हाँ जी, अगर मैं वॉच उसने ठीक करने के लिए दी थी और ठीक ही नहीं हुई, फिर भी वो उठा के ले आता है, तो क्या वो तो भी वो थेफ्ट है। स्टिल इट्स अ थेफ्ट, स्टिल इट्स अ थेफ्ट। हेयर वी आर नॉट डिस्कस अबाउट कि क्या पर्पस था, क्या कुछ था। कोई भी चीज किसी के पास भी है, किसी की पोजीशन में है, वो पोजीशन कैसे आई, वी आर नॉट गोइंग इट। अगर सपोज आपने कोई मेरी चीज है और किसी फोर्सफुल वे से आपने वो चीज मुझसे ले ली, यू डिड अ ऑफेंस वन थिंग। अब मैं क्या करता हूँ, रात को आपके घर जाता हूँ, उसे चुरा लाता हूँ, ये भी थेफ्ट है। अगर फोर्सफुली आप मुझसे कोई चीज ले गए हैं तो आप कंप्लेंट कराऊंगा मैं, ये नहीं कि खुद जाके चोरी करूंगा। हाँ जी सर। ठीक है? वो बिल्कुल लेके गई और वो वैल्यूएबल भी नहीं था उसके लिए, पर था तो सही, समथिंग तो थी सर। One thing always be clear in your mind that in a create a offense you should be have the victim who get the loss something। अगर मैं कुछ चीज आपके घर से ले गया, मैं कह रहा हूँ मिट्टी ले गया, आपके लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है, सो डू यू थिंक यू विल फाइल अ कंप्लेंट एनीवेयर? You file feeling any type of loss, anything? बट वो तो वॉच तो उसी की थी सर, वो भी लॉस तो उसका कुछ नहीं हुआ सर। Yeah, very good, great. That how can you say that the no loss has been done? He wasted some of the labor there. He think about to be clear it. He expected the some of the money from the another one. Loss तो हुआ है, नहीं सर, वो उसी की तो वॉच थी सर। पर वो जब उसको वापस लेगा तो पैसे तो देगा उसे सही करने के, जो उससे चार्जेस होते हैं। हाँ जी सर, तो ये थोड़ी बता रखा है कि वॉच ठीक हुई है या नहीं हुई है, वॉच ले गया बस। हाँ, आप ज़्यादा इंटरप्रेटेट करके क्वेश्चन को। सिंपली आई गेट द समथिंग सम गुड्स फ्रॉम द पोजीशन ऑफ अनदर। किसी और की पोजीशन में थी और उसकी पोजीशन से वो चीज़ चली गई, थेफ्ट हैज़ बीन डन। अब जो चीज़ चली गई उसने उसको रॉन्गफुल लॉस भी करा। सपोज इन अ सेम क्वेश्चन दैट गाय कम अनदर टाइम टू दैट पर्सन और उससे कहता है कि मेरी घड़ी दे दीजिए, जबकि वो सुबह वहाँ से लेके जा चुका है घड़ी को। या फिर चलो वो नहीं भी आता, पर वो व्यक्ति तो परेशान रहेगा, उसको ढूंढेगा, यस सर। उसको तो डेफिनेटली लॉस है। इट्स नॉट अबाउट ओनली दैट कि वो सही हुई है नहीं हुई है, सही करता, देखता, कुछ भी करता, कुछ तो करता। मैं कह रहा हूँ कि उसने लेके रखी, एक स्लिप बना के दे दी दूसरे बंदे को कि जब लेने आए तब ले लियो। वो स्लिप बनाने में भी तो उसने अपना लेबर वर्क यूज करा है। ही एटलीस्ट मेक हिमसेल्फ रेडी टू फिक्स दैट वॉच।
उसने वो कर नहीं पाया बिकॉज लेक ऑफ द टाइम, कोई भी रीजन है, लेकिन उसने उसके बारे में कुछ तो सोचा होगा, तभी उसने वो वॉच ली है, क्योंकि उसे पता है उसे सही कर सकता है। बिल्कुल सर। ठीक, सो वी कांट भी से कि उससे कोई लॉस नहीं हुआ। एक एक्चुअल प्रॉपर्टी जब वो किसी की पोजीशन से जा रही है तो लॉस तो डेफिनेटली होगा, लेकिन जब कोई चीज प्रॉपर्टी ही नहीं है, मैंने इटसेल्फ उसको मेंशन करा है कि देयर इज नो वैल्यू ऑफ दैट थिंग, सो इट मींस इट्स नथिंग ऑफेंस हियर। क्लियर? ओके चलो यस सर। चौथी चीज पे आते हैं, इट्स अबाउट द कंसेंट। कंसेंट हियर वी जस्ट टेक द डेफिनेशन ऑफ द कंसेंट फ्रॉम द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 13। consent should be free. Consent should be free from all type of hurdles like a coercion, undue influence, misrepresentation, fraud and mistake. It's a free consent. Whenever the person give the consent to you to give the property to you, then it should be free. ऐसा नहीं कि किसी और कंसेप्शन में आपने उसका भरोसा ले लिया और वो प्रॉपर्टी ले ली विदाउट दैट कंसेंट। क्लियर? और मैं तो यहाँ पे मतलब ये कहूँगा कि थेफ्ट के अंदर कंसेंट होती ही नहीं है। इट्स नॉट अबाउट फ्री और नॉट फ्री, होती नहीं है। अगर मैं कहूँगा कि किसी और फ्रॉड के थ्रू वो कंसेंट लिए तो वो चीटिंग का ऑफेंस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तो होगी ही नहीं, ना विलफुली ना विदाउट विल। ठीक है, अब मूव दैट प्रॉपर्टी, लास्ट थिंग वी आर कम विद द मूव दैट प्रॉपर्टी। सपोज आई गो टू योर हाउस and I found a gold ring or place on a table in your house, and what I do, I just kept that ring with myself and put it down the table, and I think whenever I get the time I will be collected from here. मैंने आपके घर में गया, आपकी मेज पे एक गोल्डन रिंग रखी हुई थी, मैंने उसे उठा के नीचे रख दिया, जस्ट उसको वो बेच के नीचे रख दिया ताकि वो आपकी पोजीशन से बाहर चली जाए, और जब मुझे टाइम मिले तब मैं उसे चुरा लूंगा और मैं अपने घर चला गया। अभी तो नहीं ले जा सकता, लेकिन अब मैं अपने घर चला गया। इज इट अ थेफ्ट और नॉट? थेफ्ट ना? ओके, that is great. So in this way, theft required the accessory of moving of property, dishonest intention. It should be done with the movable property from the possession of another without his consent. Clear? उसकी पोजीशन तो उसके पास तो नहीं है, लेकिन उसने मूव तो कर दिया सर। हाँ, मूव हो गया। आई सेड दैट गेट आउट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ द पोजीशन ऑफ दैट गाय। दूसरे के हाथ से पोजीशन चले जाए, मेरे हाथ में कुछ आया नहीं आया इससे कोई मैटर नहीं है। सपोज इफ आई गो इन योर हाउस और मैं एक तिजोरी चोरी कर लेता हूँ और मैं तिजोरी घर लाया तो वो खाली थी, अब आप बताइए थेफ्ट हुई नहीं हुई? डेफिनेटली थेफ्ट है। अब उसे मिला या कुछ नहीं मिला वो एक अलग बात है, पर थेफ्ट हैज बीन डन। ठीक है, अब मैं किसी अब अच्छा, इसी केस में मैं किसी की जेब में हाथ गेरता हूँ टू स्टील हिज वॉलेट, एंड और मैं किसी का वॉलेट चुरा लेता हूँ किसी के पॉकेट से और उसमें कुछ नहीं निकलता, ये थेफ्ट है? अच्छा, वेरी गुड। और अगर मैं किसी की पॉकेट से वॉलेट चुराने की कोशिश कर रहा हूँ पर सडनली उस बंदे को फील हो जाता है, वो मुझे पकड़ने की कोशिश करता है, मैं वॉलेट नहीं चुरा पाता, मैं भाग जाता हूँ, ये थेफ्ट हुआ कि नहीं हुआ? ये अटेम्प्ट टू थेफ्ट। वेरी गुड, वेरी गुड, दैट इज द अटेम्प्ट टू थेफ्ट। So in this way you will be go with the every section regarding that related with the theft. एक छोटा सा section मुझे आपको बताया है, that is 305. It related to the snatching. It's newly added somehow. We can be say that it's a newly added, but I think it's also be available in the last IPS around the section 358. Let me just give the discussion of it. मैं ये बता देता हूँ कि पिछली IPC में कौन सा section था. Give me a minute just. That is 356 in a last IPC. I especially mention it because the so many people are said that the snatching is new, snatching new. I personally think the snatching is already available in the IPC also, that is section 356. Snatching is said like that you commit a theft with the offender who just have the thing with himself, who carry that thing. What it said, the theft is snatching. Theft जो है theft ही snatching होगा. It means you did the theft, that is considered as the snatching if in order to commit the theft करने के दौरान offender suddenly और quickly और forcibly, तीन तरीके से, या तो अचानक से
या तेजी से या फिर जबरदस्ती seize and secure or grab or take away from any person from his possession any movable property, किसी व्यक्ति की पोजीशन से कोई भी चीज में छीन लूं, अपने कब्जे में कर लूं, ग्रैब कर लूं, उससे दूर कर दूं जल्दी, अचानक और फोर्सफुली. दैट इज द थिंग ऑफ द स्नैचिंग. Whoever commit the snatching shall be punished for the either imprisonment which may extend to the 3 years. 3 साल की इसमें सजा होगी. क्लियर? सिंपली अगर मैं अचानक, जल्दी से या फिर फोर्सफुली किसी व्यक्ति से कोई प्रॉपर्टी छीन लूं, ग्रैब कर लूं या फिर उससे दूर कर दूं, अपने पास सिक्योर कर लूं या फिर उसकी पहुंच से सीज कर दूं, उसकी पहुंच से दूर कर दूं, दैट इज कॉल्ड अ स्नैचिंग. जल्दी एकदम कोई काम हो किसी व्यक्ति से ऑन द स्पॉट. थेफ्ट इज सिंपल. थेफ्ट इन 303 इज अबाउट कि किसी के घर गए, आराम से थेफ्ट करा, प्रॉपर्टी मूव करी. यहां पे बहुत जबरदस्ती और फोर्सफुली हुआ. क्लियर? वो वाली थेफ्ट स्नैचिंग हुई और मूवेबल प्रॉपर्टी की ही स्नैचिंग हो सकती है बस. क्लियर विद द थेफ्ट? Okay, now we come with the extortion, section 308. It's the next thing about the theft. Very clearly, attentively listen this section. He said, whoever intentionally, not dishonestly, dishonestly word use हुआ था theft में, यहाँ पे हम use कर रहे हैं intentionally. Whoever intentionally put any person in fear of injury, जो अपनी मर्जी से किसी व्यक्ति को किसी इंजरी के फियर में गिरे और एनी अदर देयर बाय डिसऑनेस्टली इंड्यूस, और डिसऑनेस्टली इंड्यूस करे दैट पर्सन सो फियर, कि डर की वजह से ही डिलीवर टू एनी पर्सन एनी प्रॉपर्टी, कि उस डर से, इंड्यूजन से वो किसी को कोई प्रॉपर्टी डिलीवर कर दे या वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिलीवर कर दे, एनीथिंग साइन और सील, या फिर कुछ भी साइन कर दे या सील्ड कर दे which may be converted into valuable security, जो valuable security की तरह वर्क करे, that is called the extortion. It simply says that by because of the fear, if any person, fear of injury to that person or any person. ये बात और समझना कि मैं किसी को डर दे रहा हूं इंजरी पहुंचाने का, या तो उसी व्यक्ति को या फिर एनी अदर गाय, किसी भी व्यक्ति को, एंड बिकॉज ऑफ दैट फियर, अब या तो मैं आपको ये डर दे रहा हूं कि या तो आप मेरा काम कर दीजिए, मैं आपको मार दूंगा, या फिर मैं आपको डर दे रहा हूं कि मैं आपके किसी रिलेटिव या किसी किन को इंजरी पहुंचा दूंगा अगर आपने ये मेरा काम नहीं करा. सो बिकॉज ऑफ दैट फियर आई इंड्यूस अ पर्सन टू डिलीवर समथिंग. मैंने कहा या तो कोई चीज डिलीवर कर दे, कोई प्रॉपर्टी डिलीवर कर दे, या कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी दे दे, या फिर किसी डॉक्यूमेंट पे साइन कर दे, सील कर दे, जो कि आल्सो भी लाइक अ डिलीवरिंग ऑफ द वैल्यूएबल सिक्योरिटी है. दैट इज कॉल्ड द कमिट ऑफ एक्सटॉर्शन. क्लियर विद दैट? एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को डरा के कोई काम कराया, वो डर जो है वो किसी चीज का भी हो सकता है, उस व्यक्ति को इंजरी पहुंचाने का या फिर किसी और व्यक्ति को इंजरी पहुंचाने. क्लियर? चलो, here the newly judgment come, I mention the name after in the next class. What the judgment says that suppose it's a wife, है, so wife just make the threat to the guy कि either to give me a iPhone, otherwise I will burn myself. burn myself. इसने एक लड़के को, अपने पति को, that is the husband, और थ्रेट देती है कि either to give me the iPhone and otherwise burn myself. Otherwise I will commit the suicide. Can it be a extortion? कैसे? बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड विद दैट. ही मेक अ फियर टू दैट गाय दैट आई विल बी किल माई सेल्फ, एंड इट मीन्स दे आर गिव द थ्रेट टू कॉज इंजरी टू एनी पर्सन एंड टू एनी अदर. या तो अपने आप को हम डराएंगे कि जिससे मांग रहे हैं कि या तो मुझे आईफोन दे वरना मैं तुझे मार दूंगी, तो वो तो हुआ डायरेक्ट उसको थ्रेट देना, या फिर उसके रिलेटिव को मार देना. अब उसके रिलेटिव में कोई भी हो सकता है, इवन वो खुद भी हो सकती है. ठीक है, दैट इज द थिंग, दैट इज द एक्सटॉर्शन. एक चीज यहां पे क्लियर रखना, हियर इज द थ्रेट ऑफ फ्यूचर थ्रेट, मार दूंगा या मार दूंगी, आई विल किल, मेक अ फियर. नाउ वी कम विद द कंसेप्ट ऑफ रॉबरी. व्हाट द रॉबरी सेज. रॉबरी अब ध्यान से समझना, रॉबरी जो है वो या तो थेफ्ट की तरह होगा या एक्सटॉर्शन की तरह होगा. फर्क क्या है बस इसमें? ए थेफ्ट इज रॉबरी, एक चोरी ही रॉबरी कहलाएगी इफ
इन ऑर्डर टू कमिट थेफ्ट, अगर थेफ्ट करने के दौरान, और इन ऑर्डर टू कमिटिंग द थेफ्ट और कैरिंग अवे और अटेम्प्ट टू कैरी अवे द प्रॉपर्टी ऑब्टेन बाय थेफ्ट, या तो थेफ्ट करने के दौरान या कोई चीज जब लेने या कैरी अवे करने के दौरान थेफ्ट की तरह, द ऑफेंडर फॉर दैट एंड वॉलंटरली कॉज और अटेम्प्ट टू कॉज एनी पर्सन डेथ और हर्ट और रॉन्गफुल रेस्ट्रेन। थेफ्ट करने के दौरान अगर मैं किसी को हर्ट पहुंचाता हूँ वॉलंटरीली मैं किसी को मार देता हूँ, हर्ट पहुंचाता हूँ, या फिर उसको रॉन्गफुल रेस्ट्रेन करता हूँ, और फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, या तो मैं उसे, और मैं क्या कर रहा हूँ, उसे इंस्टेंट डेथ का फियर दे रहा हूँ, इंस्टेंट हर्ट का और इंस्टेंट रॉन्गफुल रेस्ट्रेन का। यहाँ पे वर्ड इंस्टेंट ध्यान से समझना। ऑन द स्पॉट, रॉबरी इज ऑलवेज बी कमिटेड ऑन द स्पॉट। यू आर गोइंग ऑन अ हाईवे, सम ऑफ द पीपल आर कम बिफोर यू एंड सेड दैट आई विल किल यू इफ यू डोंट गिव मी द प्रॉपर्टी। क्लियर? वो रॉबरी है। अगर कोई फोन करके आपसे कहे कि मैं आपके रिलेटिव को नुकसान पहुंचा दूंगा अगर आपने मुझे प्रॉपर्टी नहीं दी, तो वो एक्सटॉर्शन है। समझ रहे? वो एक्सटॉर्शन है। रॉबरी में इंस्टेंट फियर है, और या तो ऐसा कोई थेफ्ट जिसके दौरान या तो कोई मार दिया जाए, कोई हत्या हो जाए, वो रॉबरी हो जाएगी, या फिर इंस्टेंट फियर दिया जा रहा है, वो रॉबरी हो जाएगी। ठीक है? सेम विद द एक्सटॉर्शन, की एक्सटॉर्शन इज द रॉबरी इफ द ऑफेंडर एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द एक्सटॉर्शन इज इन द प्रेजेंस ऑफ द पर्सन पुट इन फियर। एक्सटॉर्शन एक होता है कि मैंने फोन पे मांगी आपसे पैसे, एक होता है आपके सामने आपको इंस्टेंट फियर दिया, और कमिट द एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग दैट पर्सन इन फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, अभी मार दूंगा, अभी हट पहुंचा दूंगा, इंस्टेंट हट, इंस्टेंट रॉन्गफुल रेस्टिंग, यहां से आगे नहीं बढ़ने दूंगा अगर मेरा काम नहीं करा तो, टू दैट पर्सन और सम अदर पर्सन, या तो उसी व्यक्ति को या किसी और को। अब यहाँ पे और समझना कि एक तो होता है कि फोन करके मैंने कहा कि आपके रिलेटिव को नुकसान पहुंचा दूंगा, एक मैं कह रहा हूं कि आपका रिलेटिव मेरे पास है, अभी मार दूंगा इसे, तो इट मीन्स देयर इज अ इंस्टेंट डेथ विद यू, इंस्टेंट फियर विद यू। उस चीज को करके अगर कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी के लिए लेता है या कैप्चर करता है, दैट इज कम विद द एक्सटॉर्शन, सॉरी रॉबरी। क्लियर? वाई? एक चीज और थोड़ी सी समझेंगे, एक दोबारा से एक्सटॉर्शन पे जाएंगे। हियर लुक इट वेरी केयरफुली इन दिस क्वेश्चंस। whoever intentionally put any person in fear of any injury to that person or any other person and thereby dishonestly induce that person, so put in fear to deliver him any person any property. Here they use the word property, it means they include movable property and immovable property also. Clear? In theft there is only the concept of movable, in snatching also be only the deal with the movable property, but in extortion both movable और immovable property. इसलिए हमने रॉबरी के अंदर दोनों चीज रखी हैं। रॉबरी जो है मूवेबल प्रॉपर्टी की भी हो सकती है, और एक्सटॉर्शन जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी हो सकता है। अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का होता है तो वो डेफिनेटली एक्सटॉर्शन होगा, मूवेबल का होता है तो थेफ्ट होगा। क्लियर? दैट इज विद द रॉबरी। Then we come with the डकैती. Dacoity is completely similar with the robbery. It just simply says that if the robbery has been committed by the more than 5 persons, 5 or more than 5 persons, then it will be called the डकैती. अगर 5 लोग इकट्ठे होकर रॉबरी करते हैं, जबरदस्ती छीना झपटी करते हैं, तो वो डकैती कहलाएगी। अगर 5 से कम करते हैं तो वो रॉबरी कहलाएगी। सिंपल इज दैट। अब इसमें जो 5 लोग हैं, ऐसा नहीं कि सब ऑन द स्पॉट अवेलेबल होंगे या फिर सभी रॉबरी का पार्ट हो रहेंगे। हो सकता है कि 2-3 आसपास हो, 2-3 उनको एड प्रोवाइड कर रहे हो, किसी की प्लानिंग हो, कुछ भी हो। कंपैरेटिवली टोटलिटी में 5 होने चाहिए। ठीक है? चलो, दैट इज विद द डकैती। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी एंड डकैती हैज बीन डन। सर इसमें रॉबरी में ये थर्ड क्लॉज में क्या कह रहे थे? रॉबरी में थर्ड क्लॉज, हाँ जी सर। लेट मी सी। नहीं, सॉरी, रॉबरी में एक्सटॉर्शन इज रॉबरी इफ द ऑफेंडर एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द एक्सटॉर्शन। देखो, ये वाला ही तो मैंने बताया कि अगर एक्सटॉर्शन को भी रॉबरी बना सकते हैं और थेफ्ट को भी रॉबरी बना सकते हैं। ये तो बताया था अभी। कौन से क्लॉज की बात कर रहे हैं आप? थर्ड क्लॉज ही मैं बता रहा हूँ कि देखो, थेफ्ट या तो रॉबरी बन सकती है अगर वो इंस्टेंट फियर से दी जाए, और एक्सटॉर्शन को भी रॉबरी मानी अगर उसमें इंस्टेंट फियर है। नॉर्मल एक्सटॉर्शन में हम खाली कॉल करके कह रहे हैं कि समथिंग कैन रॉन्ग कैन बी अकर्ड विद यू,
और एक्सटॉर्शन को जब हम रॉबरी बना रहे तो इसका मतलब हमने कॉल करके ये कहा कि अभी मार दूंगा तुम्हें, ठीक है। इंस्टेंट फियर है आपके पास। रॉबरी करने के दो मेथड है, दो मोड है, थेफ्ट की तरह करेंगे या एक्सटॉर्शन की तरह करेंगे। अगर मैंने मूवेबल प्रॉपर्टी की रॉबरी करी तो वो थेफ्ट होगा, थेफ्ट रॉबरी में ट्रांसफर हुआ है। लेकिन अगर मैंने इमूवेबल प्रॉपर्टी की करी तो वो एक्सटॉर्शन रॉबरी में ट्रांसफर हुआ है। डिफरेंस बिटवीन थेफ्ट एंड ऑल ऑफ दीज एट डेट की रॉबरी के अंदर इंस्टेंट फियर है, अभी आपकी डेथ हो सकती है, अभी इंजरी पहुंचा सकती है। और थेफ्ट के केस में तो कोई फियर था ही नहीं। इफ यू रिमेंबर, थेफ्ट के केस में हमने फियर वर्ड यूज नहीं करा, बट इन एक्सटॉर्शन देयर इज अ फियर बट नॉट द इंस्टेंट। यहां पे इंस्टेंट फियर है। क्लियर? चल अब हम आते हैं मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी पे। रॉबरी में भी सर फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ लिखा हुआ है सर। हाँ, रॉबरी में इंस्टेंट ऑफ डेथ है ही, किस में नहीं है? रॉबरी का मतलब ही इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ है, चाहे वो थेफ्ट का है चाहे एक्सटॉर्शन का है। थेफ्ट में कोई फियर नहीं है। एक बार फिर से देखो, आप क्लियर करेंगे। थेफ्ट में नो फियर, एक्सटॉर्शन में फियर, रॉबरी में इंस्टेंट फियर, ठीक है। थेफ्ट मूवेबल प्रॉपर्टी, एक्सटॉर्शन इमूवेबल और मूवेबल बोथ। रॉबरी दो तरीके से होंगी, थेफ्ट को रॉबरी मानेंगे या एक्सटॉर्शन को रॉबरी मानेंगे। थेफ्ट में अगर इंस्टेंट फियर आ गया और मूवेबल प्रॉपर्टी रही तो थेफ्ट एक्सटॉर्शन में रॉबरी में कन्वर्ट हो जाएगी, और एक्सटॉर्शन में इमूवेबल प्रॉपर्टी है और इंस्टेंट फियर आ गया तो एक्सटॉर्शन आपका रॉबरी में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही फियर इंस्टेंट फियर में ट्रांसफर होता है वो रॉबरी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब मुझे ये देखना है कि मूवेबल है कि इमूवेबल है। मूवेबल है तो थेफ्ट बोल दूंगा, थेफ्ट कन्वर्ट टू रॉबरी, और इमूवेबल है तो एक्सटॉर्शन कन्वर्ट इनटू द रॉबरी। और अगर ये सारा कंसेप्ट रॉबरी का 5 लोगों से ज्यादा लोग मिलकर करते हैं, 5 और मोर देन 5, तो मैं इसे डकैती बोल दूंगा। क्लियर? चलो, वेरी गुड। Now we come with the misappropriation of property. It simply says that I convert the use of any movable property. What it says that whoever dishonestly, first it dishonestly misappropriate or convert to his own use of any movable property. फिर से यहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी की बात है। सेल बी पनिश्ड विद द आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू द 6 मंथ। 6 महीने से 2 साल की सजा होगी अगर मैं किसी और की प्रॉपर्टी को अपने लिए यूज कर लूँ या मिस अप्रोप्रिएटली अपने पास रख लूँ। दैट इज द मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। मैंने चुराई नहीं है, किसी की पोजीशन से नहीं ली है। सपोज आई फाउंड अ प्रॉपर्टी एंड आई नो दैट इट्स नॉट माइन and I not even try to discover its owner. I just kept that property with myself, but I know it's the sum of another one, और इसको मैं यूज करना स्टार्ट कर देता हूँ, वो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर मैं इसके ओनर को ढूंढता हूँ वो मिलता नहीं है, वो अलग चीज है, लेकिन मिल रहा है या फिर मैंने ढूंढने की कोशिश ही नहीं करी, वो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम। Next is about criminal breach of trust. Here the thing is quite different. Here the concept of trust and contract like thing are come. Section 316, 316. Section 316 it says that whoever being in any manner interested with the property. First thing is that interested. अगर आपको कोई प्रॉपर्टी किसी भी तरीके से मिली है, आप पे ट्रस्ट करके कोई चीज आपको दी गई है, प्रॉपर्टी वर्ड हैज बीन यूज्ड, मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है, और विद एनी डोमिनियन ओवर प्रॉपर्टी, आपको कोई भी अधिकार मिला है प्रॉपर्टी के ऊपर, डिसऑनेस्टली आपने मर्जी से उसका यूज करना स्टार्ट करा, अपने लिए उसको ट्रांसफर करा, मिस अप्रोप्रिएट करा, कन्वर्ट टू हिज ओन यूज ऑफ दैट प्रॉपर्टी, और डिसऑनेस्टली यूज और डिस्पोज ऑफ दैट प्रॉपर्टी, ना केवल यूज करा, सेल आउट कर दिया, डिस्पोज भी कर दिया। किसके उसमें? इन वायलेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ लॉ प्रेस्क्राइबिंग मोड विच सच ट्रस्ट इज टू बी डिस्चार्ज, की जिस पर्पज से आपको वो प्रॉपर्टी दी गई थी लॉफुली, उस पर्पस को आपने ब्रेक करके उस प्रॉपर्टी को खुद अपने लिए यूज करा, अपने लिए मिस अप्रोप्रिएटली अपने पास रखा और डिस्पोज तक भी कर दिया,
or any legal contract express or implied which is may be cause the touching and discharge of such discharge and willfully suffer of any other person so to do, और आपकी वजह से जिसकी वो एक्चुअल प्रॉपर्टी थी, जिसने आपके ऊपर ट्रस्ट करा था, डिस्चार्ज ऑफ ट्रस्ट में ये सारी चीजें करी थी, उसको सफर करना पड़ा है लॉस, इट मीन्स यू कमिट द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। इट सिंपली सेज दैट किसी ने ट्रस्ट करके आपको प्रॉपर्टी दी, आपने उसको अपने लिए यूज करा या फिर उसको बेच खाया, इट मीन्स यू आर कमिटेड द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। Property can be the movable or immovable here. Intention should be the dishonest. Here the property is already in your possession. Clear with that? आपने किसी से चुराई नहीं है, छीनी नहीं है, धमका के नहीं लिए, कोई फियर नहीं दिया प्रॉपर, और किसी जगह से ऐसा नहीं। मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी में तो ये था कि आपको ओनर नहीं पता, यहाँ पे आपको ओनर भी पता है, ओनर ने ही आपको प्रॉपर्टी दी है ट्रस्ट करके, बट यू ब्रीच दैट ट्रस्ट, दैट इज कॉल्ड अ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। somehow like a contract is there कि कॉन्ट्रैक्ट आपने ब्रीच करा है, नाउ यू कैन आइदर टू टेक द रेमेडी इन अ क्रिमिनल लॉ और इन अ सिविल लॉ आल्सो। इन अ सिविल लॉ इज अ 316 सॉरी इन अ क्रिमिनल लॉ देयर इज अ सेक्शन 316। क्लियर? इसमें सब लोग आएंगे, whoever भी कम अंडर दिस, जिसको प्रॉपर्टी डायरेक्टली इनडायरेक्टली एज अ ट्रस्ट करके मिलती है, वो एवरीवन इज बी कंक्लूडेड इन दैट थिंग, एंड इफ दे मिसयूज दैट प्रॉपर्टी विद नोइंगली always be come under the criminal breach of trust. Clear? Yes, sir. चलो आगे चलते हैं अब हम। एक सेक्शन छोटा सा 317 is about the stolen property. Stolen property simply says that whatever the property you have, it come from the theft, extortion, robbery, cheating, whatever any case criminal misappropriation waits comes to you, and you know that its property come from the wrongful manner and the property are found in your possession, you will be liable for the stolen property. चोरी का माल रखने के जुर्म में आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक है? इट्स नॉट अबाउट कि वो प्रॉपर्टी कहाँ से आई, कैसे आई, इट मीन्स द कोर्ट वेरी क्लियर विद दैट व्हेनेवर यू गेट द प्रॉपर्टी फ्रॉम द एनीवन एल्स यू शुड हैव द बिल ऑफ इट, यू शुड हैव टू द प्रूव टू इट कि किससे कितने पैसों में खरीदी है, और जिससे खरीद रहे हैं उससे बिल ले ले, देन यू कैन बी सेफ गार्ड योर सेल्फ। तब आप ये कह सकते हो कि मुझे क्या पता जी कौन सा बंदा कहाँ से लाए, लेकिन आपके पास बिल नहीं है तो कोर्ट प्रिज्यूम करेगा कि आपने चुराई है या फिर उस ग्रोह से आप मिले हुए हैं। cheating is quite like similar with the criminal breach of trust, but the different is that in a case of cheating there the trust is not created by the another party, here the trust is created because of your act। आपने intentionally एक ट्रस्ट करा। एक ध्यान से समझना कि ए बी के यहाँ सर्वेंट है, ये जो है सर्वेंट है, और इसने बड़ी मेहनत से बी का पूरा विश्वास जीता और बहुत सही तरीके से रह रहा था। इनिशियल फेज बी ए हैव द नो इंटेंशन टू ब्रीच द ट्रस्ट। ये बहुत सही अच्छा सर्वेंट था और इसकी कोई ऐसी रॉन्गफुल इंटेंशन नहीं थी, लेकिन व्हाट हैपेंड अकर विद ए फेसेस सम फाइनेंशियल लॉस एंड द फाइनेंशियल प्रॉब्लम इन दिस फैमिली। और बी क्या है कि बी जो था वो सिल्वर प्लेटेट्स में खाना खाता था। अब ये एक दिन उसकी एक सिल्वर प्लेट लेके भग गया, ठीक है, सिल्वर प्लेट या फिर उसने बेच दी, एक के पास किचन का सारा काम था और ए ने एक दिन सिल्वर प्लेट बेच दी, दैट इज द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, बट इन अ सेम सिचुएशन इफ ए is not have a good intention, he is a completely criminal mind with himself, he go to the B or he just get the belief of B and start to work there and then he make a fraud here, that is called the cheating। अगर आप इनिशियल फेज से ही फ्रॉड इंटेंशन लेके किसी व्यक्ति के साथ मिलते हैं और उसे धोखा देते हैं, उससे रॉन्गफुल लॉस देते हैं, तो वो तो चीटिंग है। लेकिन बाद में आपका ट्रस्ट ब्रीच होता है, दैट इज द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, तो चीटिंग सिंपल ये है कि देखो मेरा अपनी एक ट्रिक है ये कि अगर क्वेश्चन में ये पता चलता है कि स्टार्टिंग से ही व्यक्ति की मनसा खराब थी, धोखे देने की उसकी मनसा थी, तो वो तो चीटिंग है। और उससे ऊपर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से मैं ये मान के चलता हूँ कि स्टार्टिंग से ठीक था, बाद में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आए कि उसने ट्रस्ट को ब्रीच कर दिया, वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। तो ट्रस्ट क्रिएट करा और उसे ब्रीच करा। चीटिंग में कभी ट्रस्ट क्रिएट ही नहीं हुआ, वो शुरू से ही रॉन्गफुल इंटेंशन थी। ठीक है, व्हाट द चीटिंग सेज दैट whoever by deceiving any person
fraudulently, dishonestly induce persons so deceived to deliver any property, किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से कोई व्यक्ति वो उसको फ्रॉडुलेंट तरीके से, डिसऑनेस्ट तरीके से डिसीव करता है, तैयार करता है टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी टू एनी पर्सन, कोई प्रॉपर्टी देने के लिए और कंसेंट देने के लिए, रिटेन ऑन प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, और इंटेंशनली इंड्यूस दैट पर्सन टू डिसीव ओमिट टू डू, या फिर वो कुछ काम नहीं करे विच वी हैव टू डू, जो उसको करना चाहिए था, इफ ही वर नॉट डिसीव, अगर वो उस धोखे में ना होता. With such act, omission cause is likely to cause damage, harm to that person in body, mind, reputation or property is said to cheat. Very clear with that. We are reading the offense against property here, but in a case of a cheating, the thing is come कि नुकसान किस किस चीज को हो सकता है, बॉडी को हो सकता है, माइंड को हो सकता है, रेपुटेशन को हो सकता है, एंड प्रॉपर्टी को हो सकता है. इफ द एनी पर्सन बिकॉज ऑफ देयर द डिसीविंग एंड फ्रॉडुलेंट डिसऑनेस्ट नेचर मेक द एनी पर्सन deceived to deliver any property, to give any consent, या फिर not to do anything which they have to do if he is not to deceived, it means they cause the and they because of that act. दो बातें हैं, पहले तो मैंने किसी को किसी करने या ना करने के लिए तैयार करा, और उस करने या ना करने से उसको डैमेज हो रहा है, या तो उसकी बॉडी को, माइंड को, रेपुटेशन को, प्रॉपर्टी को, दैट इज कॉल्ड चीटिंग. ठीक है, अगर मैंने किसी को उकसाया कुछ करने के लिए फ्रॉडुलेंटली, लेकिन उससे उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा, नथिंग ही गेट द लॉस विद हिमसेल्फ, इट्स मींस चीटिंग हैज नॉट बीन डन. ठीक है, इट्स वेरी क्लियर दैट कोई भी नुकसान हो, या तो उसको कोई इंजरी कॉज हो जाए, या फिर उसके दिमाग में कुछ मेंटल ट्रॉमा क्रिएट हो जाए, उसकी रेपुटेशन डिफेम हो जाए, या फिर उसकी प्रॉपर्टी चली जाए, ही विल बी लायबल फॉर द चीटिंग. क्लियर? चलो एक लास्ट सेक्शन और रहता है अब हमारा, मिसचीफ ऑफ प्रॉपर्टी. दैट इज द सेक्शन 324. इट्स सिंपल. अब यहां तक तो हमने क्या देखा कि किसी न किसी व्यक्ति को कुछ ना कुछ मिल रहा है. इन मिसचीफ ऑफ प्रॉपर्टी द ऑफेंडर डिडंट गेट एनीथिंग एक्चुअली. इट सिंपली सेज दैट हूएवर इंटेंट टू कॉज और नोइंग दैट इट लाइकली कॉज, या तो जो खुद इंटेंशनली कोई काम कर रहा है या नोइंगली कोई काम कर रहा है, विच कॉज द रॉन्गफुल लॉस नॉट रॉन्गफुल गेन. यहाँ पे डिसऑनेस्ट वर्ड यूज नहीं, अगर वर्ड कहीं पे डिसऑनेस्ट यूज होता है तो वहां पे तो रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस दोनों ही इम्प्लिसिट होंगे. लेकिन अगर इन्होंने डिसऑनेस्ट वर्ड यूज नहीं करा, सिर्फ रॉन्गफुल लॉस यूज करा, तो हम स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन के साथ चलेंगे कि रॉन्गफुल गेन यहाँ पे नहीं होगा. अगर कोई इंटेंशनली और नोइंगली ऐसा काम करे जिससे किसी और को रॉन्गफुल लॉस हो, डैमेज हो टू द पब्लिक और एनी पर्सन, या तो किसी को भी हो सकता है, पब्लिक एट लार्ज को हो सकता है, या किसी इंडिविजुअल को हो सकता है, विच कॉज डिस्ट्रक्शन, और किसकी वजह से हो रहा है, डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, क्योंकि आपने कोई प्रॉपर्टी खराब कर दी, एनी सच चेंज इन द प्रॉपर्टी, या फिर किसी प्रॉपर्टी में, किसी सब्जेक्ट मैटर में कुछ चेंज कर दिया, उसकी सिचुएशन में चेंज कर दिया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, डिमिनिश कर दिया, उसकी वैल्यू को कम कर दिया, उसकी यूज को हटा दिया, और जिसकी वजह से इंजरी कॉज हो रही है, दैट इज कमिटेड द मिसचीफ. यू डिड एनीथिंग because of that the wrongful loss caused to the public or the any person, and what you did, आपने you change any property, you destroy any property, you diminish any property, whatever you did, that is called the mischief. ठीक है, जैसे कि कोई सपोज साइनिंग बोर्ड है, साइन बोर्ड है, आपने उस साइन बोर्ड को डायरेक्शन ही चेंज कर दी, कोई रास्ता बता रहा है कोई बोर्ड, और उस बोर्ड की गलत डायरेक्शन कर दी, उसकी वजह से लोग गलत रास्ते पे चढ़ते चले जा रहे हैं, दैट इज द मिसचीफ. कोई चीज़ ली आपने, देखी यार एक तो बड़ी वैल्यूएबल चीज़ है, आपने उसका ओनर वोनर नहीं ढूंढा, उठा के पानी में फेंक दी, अननेसेसरी, यू विल बी लाइबल फॉर दिस थिंग. सो व्हाट वी डन टुडे, वी डिड द थेफ्ट, we did the extortion, we did the robbery, dacoity, and apart from that we also did the misappropriation of property, criminal breach of trust, cheating, एक बीच में stolen property भी थी, and in last we did the mischief. Go and read the all sections regarding the offense against property. Come with the illustrations every sections and notice to me, we will do it that. Okay? Chalo, let me end this class. Okay then, thank you.